Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to continue the chapter Major Realms of the Earth, chapter number 5. Come on to the page number 42. Hydrosphere, the realms of water. इससे पहले हम लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ा, लिथोस्फेयर पढ़ा, अब हाइड्रोस्फेयर. Hydrosphere refers to the layer of water on the surface of the earth, below the surface of the earth and also in the air. Hydrosphere refers to as a water bodies, and water bodies, it is also on the surface of the earth, below the surface of the earth and present in air also in the form of moisture. Water covers about 2/3 of the total surface of the earth. It means it covered 66%, that is 2/3, but actually the ocean covers 71% part of the earth. Therefore the earth sometimes is called a watery planet or a blue planet. The large part of the earth is covered by ocean. Earth is also known as watery planet or blue planet, and because the largest part of the earth is covered by water bodies. Water is present in the form of ice sheet in the polar region and on high mountain. Water also occurs on the land in the form of lake and river. सबसे पहले तो वाटर जो है वो ओशियन के फॉर्म में, फिर पोलर रीजन में एंड माउंटेनियस एरिया में, एंड थर्ड वन इज इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड rivers. Next is ocean. Oceans. The oceans covered about 71% of the total surface of the earth. The vast expanse of water is in the form of 5 oceans, that is the Pacific, the Atlantic, the Indian, the Arctic and the Southern Ocean. Southern Ocean is also known as Antarctic Ocean. Let us learn more about each of them. The Pacific Ocean. The ocean is the largest. This ocean is the largest. ये ocean largest ocean है. It covers about 1/3 of the earth surface. ये अर्थ सरफेस का 1/3 कवर करता है. इट मीन्स 33% एरिया जो है वो पैसिफिक ओशियन कवर करता है. नेक्स्ट इज दिस ओशियन इज सराउंडेड बाई 4 कॉन्टिनेंट, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड अंटार्कटिक. द पैसिफिक इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशियन. सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक है. क्यों? बिकॉज पैसिफिक ओशियन में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरियाना ट्रेंच है एंड इट इज़ 11,033 मीटर डेप्थ, और इससे ज़्यादा डेप्थ कोई भी ओशियन में डीपेस्ट पॉइंट एरिया नहीं है. यहाँ पे एक मेंशन कर रहा है कि अंटार्कटिक ओशियन है. दूसरा यहाँ हम लोग पढ़े थे अंटार्कटिक ओशियन, एंड कॉन्टिनेंट में कह रहा है अंटार्कटिक. तो अंटार्कटिक ओशियन भी है, कॉन्टिनेंट भी है. कैसे? कॉन्टिनेंट हम किसी को कंसीडर करते हैं उसका वो लैंड पार्ट एरिया देखकर, उसका लैंड मासेस देखकर. तो अंटार्कटिका के पास वो लैंड मासेस है जिसके कारण उसको कॉन्टिनेंट कंसीडर करते हैं, बट उसका जो एरिया है वो पूरा का पूरा आइस शीट से या ओशियन फ्लोर से ढका होता है, कवर होता है. दैट्स व्हाई अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बॉडीज. द एवरेज डेप्थ ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द ओशियन इज अबाउट 7300 मीटर, द एवरेज डेप्थ, बट द डीपेस्ट पॉइंट इज 11,033 meters, Mariana Trench. Okay. Next one is the Atlantic Ocean. It is about half of the size of the Pacific Ocean. ये Pacific Ocean के साइज का हाफ है. It means Pacific Ocean अगर 33% कवर कर रहा है तो ये कवर करेगा 16.5%. It means Pacific Ocean और Atlantic Ocean मिलकर अर्थ का 50% एरिया कवर कर लेता है. नेक्स्ट इज इट कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का टोटल एरिया 1/6 कवर करता है. 1/6 इट मीन्स 16.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 16 6 96 एंड 5 6 33, इट इज़ 99%, ऑलमोस्ट 100%. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट. The Indian Ocean, it is smaller than the Pacific and Atlantic Ocean. Pacific Ocean और Atlantic से स्मॉलर होता है, बाकी दो ओशियन से ये बड़ा है. नेक्स्ट इज इट इज़ बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. यस, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है, घिरा है. इट इज़ द ओनली ओशियन विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. ये सिर्फ एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका किसी कंट्री के नाम पे नेमिंग किया गया है, दैट इज इंडिया. द आर्टिक ओशियन, दिस ओशियन लाइज within the Arctic Circle and North Pole in its center. North Pole और Arctic Circle के covered area में है ये. The Pacific and the Atlantic Ocean merge into it in the north. Atlantic Ocean और Pacific Ocean ये दोनों merge होता है किस में? Arctic Ocean में. कैसे? एक छोटा सा हम लोग फिगर देखेंगे अभी. पेज नंबर 42 में देखोगे
ये है अटलांटिक ओशियन जो कि एस के शेप में अभी होता है। ये यहाँ जा रहा है आर्कटिक के पास, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ तक गया, ये पैसिफिक ओशियन, ये यहाँ तक गया, तो ये गया कहाँ, आर्कटिक ओशियन में। दैट्स वाई मेंशन द पॉइंट इज अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है वो आर्कटिक ओशियन में जाकर मर्ज होता है। नेक्स्ट वन इज एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मेक देयर northern boundaries with this ocean. The Arctic Ocean remain frozen for a larger part of the year. ईयर का लार्जर पार्ट जो आर्कटिक ओशियन होता है वो रिमेन फ्रोजन होता है, पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। द सदर्न अंटार्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। द सदर्न ओशियन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन अराउंड अंटार्कटिक। कहता है सदर्न ओशियन जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है। इट मीन्स फर्स्ट वन इज पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ अंटार्कटिक एंड लास्ट आर्कटिक ओशियन। दिस ऑक्युपाइज अबाउट 20% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोबल ओशियन। पूरे ग्लोबल ओशियन का ये 20% एरिया कवर करता है। इट मीन्स टोटल एरिया कितना है ओशियन का, 70%। 70 का 20% 14%। 14% एरिया कौन कवर किया, इट वॉज कवर्ड बाई सदर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर refers to a narrow zone which is very close to the earth's surface on the land, water and air. It means it comprises lithosphere, hydrosphere and atmosphere. All this comprises and form biosphere where life exists. It comprises of all form of organism. It consists of animals, plant and microorganism. Biosphere also consists animal, plants and microorganism. Biosphere exists where the upper part of the lithosphere, the lower part of the atmosphere and the hydrosphere come in contact with one another. तो लिथोस्फीयर का सबसे अपर पार्ट, एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर पार्ट और हाइड्रोस्फीयर, ये सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर को। कैसे, यहाँ देखेंगे फिगर में, एटमॉस्फेयर का ये नीचे वाला एरिया, लिथोस्फीयर का अपर एरिया एंड हाइड्रोस्फीयर का ये एरिया। तो ये जोन जो है ये बनता है, दिस जोन इज नोन एज बायोस्फीयर। ये जोन इतना, ठीक है, दिस वन इज। नेक्स्ट वन, the lower all plants, animals and microorganisms live together in their physical environment and interact with each other. They are interdependent for their survival. All the living organisms, plant, animals and human beings all are interdependent for their survival. Life exists only about 9 km above the earth. अर्थ के केवल 9 किलोमीटर ऊपर, मतलब 9000 मीटर तक ही लाइफ एग्जिस्ट है, उसके बाद लाइफ पॉसिबल नहीं है। एंड अबाउट 11 किलोमीटर बिलो, एंड 11 किलोमीटर बिलो तक, बिलो दी ओशियन सरफेस। ये हम लोगों के लिए नहीं कह रहा है, एक्वाटिक लाइफ के लिए कह रहा है, मतलब वो 11 किलोमीटर नीचे तक लाइफ सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो सकता है। इन दिस इट इज़ दिस स्फीयर वेयर 4 नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट आर प्रेजेंट। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। द फिजिकल कंडीशन ऑन द अर्थ इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ का जो फिजिकल फॉर्मेशन है या फिजिकल कंडीशन है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। एंड ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के डिफरेंट पार्ट में जो लाइफ फॉर्म पाया जाता है उस पर ये डिपेंड करता है, या फिर उसके चेंजेस उनमें जो चेंजेस आता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वेरी इन देयर साइज एंड शेप। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड साइज। They differ from place to place as they require a certain habitat for their growth and survival. Place to place plant and animal भी vary करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जैसा environment चाहिए बढ़ने के लिए वैसा environment उनको मिल नहीं पाता है। That's why their shape and size also vary. All plants and animals maintain a balance in a region. It is the human being who interferes and creates imbalance between the plant and animals. It means the only human being are responsible for the imbalance in ecosystem or imbalance in our environment. As the human population is increasing rapidly, more space is required. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनको जगह चाहिए रहने के लिए, एंड अपने रहने की जगह बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट को क्लियर करते चले जा रहे हैं। फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। एग्रीकल्चर के लिए स्पेस चाहिए, इंडस्ट्री के लिए स्पेस चाहिए, फैक्ट्री के लिए स्पेस चाहिए, और अर्बनाइजेशन के लिए रूरल एरिया को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करने के लिए उनको स्पेस चाहिए। इट मीन्स पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इकोसिस्टम को डैमेज करने के लिए। मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। मैन जो है वो केयरलेसली फॉरेस्ट
को क्लियर कर रहा है, इट मीन्स रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को लीड्स कर रहा है, एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता जा रहा है. As a result of these activities, several problems have emerged before human beings. For example, soil erosion, floods, etc. कहता है ह्यूमन बींग की इस तरह के इंटरफेरेंस के कारण बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या फिर बहुत सारा सा डिजास्टर्स है जो लीड्स होता है या फिर काउज होता है. कौन कौन सा है? सम एग्जाम्पल आर सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. बिसाइड दिस पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर हैज़ इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल. धीरे धीरे एयर और वाटर पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता जा रहा है. Water pollution and air pollution also increased only because of the interference of human beings. इस चैप्टर में इतना ही. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ, और उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर होगा कंप्लीट. कम ऑन टू द पेज नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड माउंटेन. सबसे ओल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली. बाकी हिमालयस, एंडीज एंड अल्प्स, ये तीनों यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. How much surface of the earth is covered by ocean? 71%. The largest ocean in the world is Pacific. Which continent is the most advanced economically developed continent? सबसे ज़्यादा डेवलप कंटिनेंट कौन है? यूरोप. And next one is, which one of the following gases has the largest volume in the atmosphere? Nitrogen. It is 78%, and 21% is oxygen. Rest one are helium, neon, argon, ozone, etc. Number 1 is, biosphere is a narrow zone or a narrow belt of the earth where all form of life exist, which comprises lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Number 2 is, an envelope of the air surrounding the earth is called, it is atmosphere. Lithosphere is the upper surface of the earth consists of rock. अर्थ के सिर्फ अपर सरफेस में, लिथोस्फीयर के सिर्फ अपर सरफेस में रॉक पाया जाता है. A highly elevated landform of the surrounding with very steep slopes is known as माउंटेन. जो सबसे हेवी स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है, बहुत ज़्यादा ढाल वाला जगह होता है, वो माउंटेन्स का होता है. एंड द अपलैंड विथ रग्ड सरफेस इज कॉल्ड. जो अपलैंड होता है, रग सरफेस होता है, बहुत ज़्यादा रोकड़ा होता है या फिर रग होता है, रफ होता है, इट इज प्लेट्यू. कम ऑन द मैच द फॉलोइंग. इट सेपरेट यूरोप एंड एशिया. यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है? यूरल माउंटेन्स एंड यूरल रिवर. इट ज्वाइंस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता है? Isthmus of Panama or Panama Canal. The largest continent of the world, Asia. It helps in burning oxygen, and the continent in the southern hemisphere, it is Antarctica. Obvious, Antarctica जो है वो साउथ में है, तो southern hemisphere जो होगा वो Antarctica का होगा. Answer the following question in brief. Number 1, name the 4 realms of the earth. It is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Which 4 gases constitute only 1%, that is helium, argon, neon, ozone, carbon dioxide, और जो भी आप एक दो और लिख सकते हैं. Which continent is not habited by the people and why? Which continent is not habited by the people and why? कौन सा कंटिनेंट पीपल के द्वारा हैबिटेट नहीं होगा? ऑब्वियस, अंटार्कटिक और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट. क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ये पूरा आइस शीट से या बर्फ से ढका होता है. Why the earth is known as a unique planet? Because the only earth where life is exist, where water and sunlight available. ये हम लोग देखते चलेंगे. पहला का जो आंसर है पेज नंबर 37 में फाइंड आउट करोगे, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है. दूसरा पेज नंबर 42, थर्ड आंसर 40 में, फोर्थ आंसर पेज नंबर 37, फिफ्थ पेज नंबर 40. नेम 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. मेजर लैंडफॉर्म कौन सा? प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन. आंसर हम आपको बताते जा रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो पेज नंबर में खोजने में. पेज नंबर बता दिया गया है, सर्च आप खुद से करेंगे, क्योंकि सारा कुछ अगर हम ही कर देंगे तो फिर इस चीज़ का आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. इट इज़ हार्मफुल फॉर यू दैट यू आर नॉट बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट, not of independent. So try to be independent. Only mark the page number and find out the answer. And आप लोग एक काम और करोगे, क्वेश्चन आंसर को इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन कमेंट बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग पोस्ट कर दोगे. नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर प्लेन्स. प्लेन क्या है? तो प्लेन एक लो लाइंग एरिया है जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है एंड इट वॉज फॉर्म बाय द रिवर वाटर.
which comes with their sediment, silt and clay and deposit on their bed area or their bank area. Explain briefly in the formation of plain. प्लेन का फॉर्मेशन बता दिया गया, रिवर के थ्रू होता है, कैसे होता है, तो अपने साथ वो सेडिमेंट, सिल्ट, क्ले लेकर आती है। पेज नंबर 41 में है इसका आंसर। नंबर 2 इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के प्लेट्यूज के बारे में ब्रीफ अकाउंट देना है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक हाईलैंड एरिया है, टेबल लैंड एरिया कहलाता है, जो कि रग्ड होता है, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स किस तरह से? तो अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड वाला एरिया, मालव प्लेट्यू मध्य प्रदेश का एरिया एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इट इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 मेन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 2 मेन गैसेज, ऑब्वियस, 1 नाइट्रोजन 78%, सेकंड ऑक्सीजन 21%, विच कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द टोटल गैसेस। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। दोनों का सिग्निफिकेंस बताना है। इट इज इजली अवेलेबल इन पेज नंबर 41। फाइंड आउट, इसको खोजेंगे और खुद से लिखेंगे एंड कमेंट सेक्शन में बताओगे भी। बाकी जो क्वेश्चन आंसर उसका हम PDF बना के आपको भेज दिया करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोस्फीयर? इट कंस्टिट्यूट वाटर बॉडीज इन द फॉर्म्स ऑफ ओशियन, लेक, रिवर, आइस शीट, ग्लेशियर्स एंड इन पोलर रीजन। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो लाइफ एरिया को, एक्वाटिक लाइफ को ये लीड्स करता है। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउजिंग ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये आंसर हम आपको दिखा देते हैं पेज नंबर 44 में। ये हम लोग यहाँ पे देखे भी थे, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरफेयर करता है इकोसिस्टम में। अपने जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनका डिमांड बढ़ता है, उनको स्पेस चाहिए रहने के लिए, उसके बाद वो फॉरेस्ट क्लियर करते हैं, रिसोर्स का यूज़ करते हैं, एक्सेसिव रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और एक्सेसिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, इंडल, और उसका रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में या फिर इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करने में, इम्बैलेंस करने में। बस इस चैप्टर में इतना ही है। रेस्ट जो मैप वाला जो क्वेश्चन आंसर है, वो मैप सारा क्वेश्चन आंसर आपको दुर्गा पूजा के टाइम पे जो वैकेशन होगा उसमें आपको जितना भी मैप क्वेश्चन है अभी तक जो कंप्लीट किया गया चैप्टर है, वो सारे चैप्टर का मैप क्वेश्चन हम आपको उस समय अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।